So, hello everyone, and welcome back to another episode. So today, we are trying to understand how to implement an elevator design system, and we will try to work together and find a problem and then a solution. So, I would want to start like this, but let me open the Visual Studio Code and I will have a new file inside it called requirements, and here we will put all our, you can say, requirements which we are discussing, right? And if it's visible to you, then okay. If it's not, we are trying to do this. So now I think it will be more visible, at least for when we are typing, right? So what is elevator design system? It's what is the elevator? Elevators, you know that in a multi-story building, we will have something which can efficiently move us up and down regarding, we will not use the stairs, right? So this typical system will include what? It will include one or more elevator cars, and it will, how it will work? It will work on the basis of user request, which will call a button on each floor. Now, to ensure efficiency and safety, what we will do? We will be having our elevator, right, to be intelligent, not like AI, but at least something else. And it can actually have it should support, right? But let me just give you a basic thing which we'll focus on, focus area. So what will it be? It will be like multiple. We should coordinate between multiple elevators. Okay, and we should we should request शेड्यूलिंग मीन्स कोई ऊपर आ रहा है कोई नीचे जा रहा है, दैट कैन बी डन. तीसरा होगा लाइक वी कैन डू कैपेसिटी मैनेजमेंट, लाइक कितने टोटल लोग आ सकते हैं उसमें. नाउ वी विल हैव रियल टाइम अपडेट्स, एलिवेटर का करंट स्टेटस क्या है. ओके, नाउ व्हाट विल डू इज लाइक सेफ्टी एंड फॉल्ट टॉलरेंस, एज वी नो, लाइक इमरजेंसी के बीच में एलिवेटर बंद होना चाहिए, क्रिटिकल फॉल्ट के बीच में एलिवेटर शुड बी गोइंग टू समथिंग लाइक दैट, कौन से फ्लोर पे जाना चाहिए एंड ऑल. फिर यूएक्स, राइट, कैसे लाइक मिनिमाइज करोगे आप वेट टाइम्स को, सपोर्ट कैसे करोगे आप अप डाउन रिक्वेस्ट को, और क्लियर इंफॉर्मेशन कैसे प्रोवाइड करोगे यूजर को, राइट. तो एक्सपेक्टेशन क्या है इस इंटरव्यू से? तो बेसिकली बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं इस इंटरव्यू में जो हमको डिज़ाइन करने हैं, और एटलीस्ट उसके बारे में बात करनी है. तो कैसे बात करें? पहला चीज एक्सपेक्टेशन ये है कि मल्टीपल एलिवेटर्स होने चाहिए. ठीक है, आप पूछ सकते हो कि वन एलिवेटर सिस्टम है या मल्टी एलिवेटर सिस्टम है. ठीक है, मल्टी, और उसमें क्या वेट टाइम रहेगा, क्या रहेगा. सो यू कैन आस्क दिस क्वेश्चन लाइक इज वन और मल्टी एलिवेटर. ठीक है. Second question you can have is a display, like how many user requests we can have in each floor, like call panels. Um, okay, now second thing is what information will be showing in displays, inside and outside, in and out both, like current flow, directions, क्या क्या चीज वहां पे, वो वहां से क्लिक कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, ऑल दोज थिंग्स. देन यूजर कैसे इन्फॉर्म करोगे क्या हो रहा है, यूजर इंफॉर्मेशन regarding status and updates, right? Now, this should be inside display only. ओके, बट इसको मैं एक तरीके से ऐसा कर देता हूँ. नाउ विल कम टू थर्ड, इट विल बी ऑप्टिमाइजेशन. सो ऑप्टिमाइजेशन मतलब कि क्या होगा? ऑप्टिमाइजेशन विल लुक इनटू हाउ विल यू मिनिमाइज पैसेंजर टाइम. ठीक है,
and how will you minimize unnecessary कार मूवमेंट्स. ओके. पीक आवर्स कैसे हैंडल करोगे, कंकरेंट रिक्वेस्ट कैसे हैंडल करोगे, एंड यूएक्स कैसे हैंडल करोगे एंड ऑल थिंग्स. ठीक. नाउ विल कम टू रिलायबिलिटी एंड सेफ्टी. लाइक फॉल्ट्स, इमरजेंसीज एंड ओवरलोडेड कंडीशंस. ओके. So now let's talk about design approach, like how we will design. So this is gone. Let's talk about design approach. So पहले हम will start very small and we'll go with the bottom up approach. Like we'll start with the smallest building blocks of the system, जैसे button, door, display. Then we will talk about the larger components. Okay, जैसे कि ये स्मॉल कंपोनेंट बटन डोर्स जिसपे से हमको larger कंपोनेंट बिल्ड करेंगे, जैसे एलिवेटर कार हुआ, रिक्वेस्ट पैनल हुआ, फ्लोर का सब सिस्टम हुआ. फिर इसको सबको इंटीग्रेट करेंगे एक बड़े सिस्टम में, जैसे कि कंप्लीट एलिवेटर कंट्रोल सिस्टम. और उसके बाद इसमें हम हर स्टेज में रिफाइनमेंट करेंगे. ओके. सो स्टार्ट स्मॉल विथ व्हाट, विथ बटन, डोर एंड डिस्प्लेस. Then move big to what? Moving big towards cars, elevator cars, request panel, and floor subsystem. ठीक है. Then integrate to full system. Okay. Now we'll talk about design pattern. What design pattern we will use? So see, elevator car is there, and what else design pattern we can use is elevator car is there, and then we can have multiple things inside it. So in our order, the design pattern should look um, like is you, if you know that if anything requires a centralized logic and a multiple elevator cars or prevent conflicts and all those things, right? So उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमको सिंगलटन यूज करना रहेगा. तो सिंगलटन के बारे में पहले बात करेंगे, ये क्यों यूज चाहिए, जैसे हमने बात किया कि ये हमें एक सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल देगा. किसके लिए? जो कोऑर्डिनेट करेंगे किससे? मल्टीपल एलिवेटर कार्स से. ठीक है. अब दूसरा आता है ऑब्जर्वर पैटर्न. ये क्यों चाहिए? ताकि हम फ्लोर पैनल्स और डिस्प्ले को नोटिफाई कर सके जब भी कोई एलिवेटर आने वाला है, कोई स्टेट चेंज हो रहा है, कोई करंट फ्लोर पे कुछ अपडेट हो रही है, उसके लिए. तो नोटिफिकेशन टू फ्लोर पैनल्स, डिस्प्लेस, स्टेट चेंजेस एंड करंट फ्लोर. ठीक है. ये हो गया. नाउ आते हैं हम स्टेट डिजाइन पैटर्न में, मतलब कि आपको डिफरेंट जो आपका स्टेट रहेगा एलिवेटर का, राइट? जैसे मूविंग अप, डाउन, है ना, स्टॉप्ड, ये सब बताने के लिए. लास्ट आता है स्ट्रेटजी. इसकी बात करेंगे, मतलब क्यों कर सकते हो ये बताता हूँ. स्ट्रेटजी में क्या है कि आप अप्लाई कर सकते हो जो आपको नियरेस्ट कार कलेक्टिव कंट्रोल ये सब करना पड़ेगा, जिसको हमको नीडेड चाहिए रहेगी शेड्यूलिंग के लिए. कैन बी यूज्ड फॉर शेड्यूलिंग द नियरेस्ट एलिवेटर कार कंट्रोल. तो बेसिकली इसका ये मतलब तो आप समझ गया ना कि भाई देखो,
एलिवेटर डिजाइन सिस्टम को समझने के लिए बस ये अपने तरीके से याद करते रहो कि हाउ एन एक्चुअल एलिवेटर वर्क्स एंड कैसे आप उसको एक कोड में डाल सकते हो। ओके, अब ये हो गया। लेट्स मूव अहेड to the requirements. So we already talked about requirements, but I will give you all the requirements in a bit, like properly. So the first requirement will be that it should support configurable number of floors, like कितने फ्लोर आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो, लाइक एंड अ कॉन्फ़िगरेबल नंबर ऑफ एलिवेटर कार्स दैट कैन बी अप टू 3। फॉर नाउ वी आर सेइंग अप टू 3, बट या ठीक है। अब हर एलिवेटर को ये एक्सेस होना चाहिए कि वो हर फ्लोर और पे एग्जिट कर सके, और उनके पास चार फ्लोर स्टेट्स होंगे। क्या क्या? अप, डाउन, मेंटेनेंस एंड आइडल। नाउ एलिवेटर का जो डोर है shall only open when the car is idle and auto close after a configurable timeout unless open button is held। अब शेल हैव अ पैनल जिसमें अप डाउन कॉल बटन्स हो, इंडिकेटर लाइट्स हो, और एक्सटर्नल डिस्प्ले हो कार के करंट फ्लो डायरेक्शन का। तो एलिवेटर के फ्लोर में अप डाउन और डिस्प्ले होना चाहिए। अब एलिवेटर कार के अंदर क्या होना चाहिए? वो सारे बटन होने चाहिए, ओपन क्लोज होना चाहिए, इमरजेंसी स्टॉप होना चाहिए, और इंटरनल डिस्प्ले होना चाहिए। और pressing the emergency stop button shall immediately halt the car, right, and keep the door closed and alert building security operator, like एक नोटिफिकेशन जाना चाहिए। ईच एलिवेटर कार जो है उसमें मैक्सिमम लोड कितनी होगी? 60-80 kg हमने बोला है, बट x kg आप मान लो। एंड ये चलना बंद हो जाना चाहिए जब भी लिमिट एक्सीड हो, और एक ऑडिबल या विजुअल अलार्म डालना चाहिए जब भी आपको ओवरलोडेड हो। नाउ रिक्वायरमेंट 8 क्या है? एक सेंट्रल कंट्रोलर असाइन होना चाहिए जो कि कार को ऊपर नीचे फ्लोर पे मूव कर सके, जिससे आपका एवरेज वेट टाइम जो है वो कम हो, और कमांड होना चाहिए कार को ऊपर नीचे मूव करने के लिए। अब एलिवेटर कार सिस्टम में मल्टीपल पैसेंजर द्वारा किया गया वो भी होना चाहिए, मतलब कि आप कॉल कर सकते हो, और हर पैसेंजर को, ठीक है, वो डिफरेंट फ्लोर पे अपोजिट सेम डायरेक्शन में जाने की परमिशन होनी चाहिए हमको। हम उस पे अभी वो नहीं लेके आए हैं जिसमें होता है कि एग्जीक्यूटिव फ्लोर ये सब वाले, इसमें आपको की लगाया रहता है, लेट इट बी, बट दैट आल्सो कैन बी डन। नाउ रिक्वायरमेंट 10 में है कि मेंटेनेंस स्टेट होना चाहिए, इसमें कार जो है वो वापस उससे रिमूव हो जाएगा, और एलिवेटर डोर बंद रहेंगे, और यूआई जो बोलेगा डिस्प्ले के लिए। अब जैसे ही मेंटेनेंस से एग्जिट हो गया, कार को वापस आपको आइडल स्टेट में डालना है। ये रिक्वायरमेंट 10 है, ताकि वो रिज्यूम कर सके सर्विस को। रिक्वायरमेंट 11 क्या है कि सारे इंटरनल और एक्सटर्नल डिस्प्ले और इंडिकेटर्स को अपडेट करना चाहिए, किससे? रियल टाइम एलिवेटर कार के, जैसे करंट फ्लोर हुआ, डायरेक्शन हुआ, ऑपरेशनल स्टेट जो भी है उसका वो। रिक्वायरमेंट 12 आता है कि द सिस्टम शैल कम्युनिकेट ऑल द ऑपरेशनल स्टेट, जैसे एरर, सेफ्टी मेजर्स और सेफ्टी मैसेजेस, ऑडियो विजुअल इंडिकेटर्स, एवरीथिंग। ठीक है, तो ये एक तरीके से पूरा रिक्वायरमेंट हो गया। तो अब हम आते हैं यूज केस डायग्राम पे, ठीक है। तो यूज केस डायग्राम पे मैं बात करूंगा सिस्टम में क्या है। तो जो एलिवेटर है वो कंट्रोल करता है सिस्टम को, जिसमें फिजिकल कार्स हैं, फ्लोर है, पैनल है, सेंट्रल कंट्रोलर है, एवरीथिंग। तो एक्टर क्या क्या होंगे इसमें? जो मेन एक्टर होगा वो क्या होगा? वो होंगे पैसेंजर्स, राइट। और क्या होगा? सेकेंडरी एक्टर क्या होंगे? वो होंगे आपके ऑपरेटर, ठीक है। तो पैसेंजर का काम क्या होगा? पैसेंजर का काम होगा कि वो एलिवेटर को कॉल कर सके अप डाउन के लिए। दूसरा, अन डेस्टिनेशन फ्लोर दबा सके अंदर जाके। तीसरा, ओपन क्लोज का रिक्वेस्ट कर सके एलिवेटर के अंदर। और चौथा, इमरजेंसी अलार्म बना सके। नाउ ऑपरेटर का काम क्या होगा? मेंटेनेंस मोड संभाले, ठीक है। इट शुड रिमूव देम फ्रॉम द नॉर्मल क्यू, है ना,
और उसको स्टेट को चेंज करे। दूसरा क्या होगा, मेंटेनेंस मोड का ही काम है, इंसर्ट इनटू द क्यू। तो ये देखो, ये जो बात कर रहे हैं ना, ये सब फंक्शन पे जाएंगे। ठीक है, तीसरा क्या रहेगा, ये गेट मेथड है, रिसीव अलर्ट्स। ठीक है। अब जब यूज केसेस क्या क्या है कि पैसेंजर कॉल कर रहा है, ठीक है, जब कॉल आइडियल है या पासिंग है उस स्टेट पे काम करेगा आपका एलिवेटर। जब भी, अब जब डेस्टिनेशन फ्लोर सिलेक्ट कर रहा है तो उसको पैनल इनसाइड द एलिवेटर चेक करना है और डिजायर्ड फ्लो चेक करना है। जब भी डोर जो है वो ओपन हो या कार आइडल हो, उसके बीच में भी आप कर सकते हो, बट लाइक इफ इट गोज अप यू यू विल टेल कि क्या बोलते हैं, ये ऊपर हो गया नीचे हो गया। इमरजेंसी स्टॉप बटन कर सकता है और रिक्वेस्ट कर सकता है ओपन क्लोज का ओनली व्हेन कार इज आइडल, आइडल और लाइक आइडल ओनली। ओपन क्लोज तो तभी चालू होगा। फिर ऑपरेटर का काम तो वही है कि एलिवेटर को अप एंड डाउन और आइडल स्टेज में मूव करे, एलिवेटर को कॉल करे। ठीक है, आपके वो ऑपरेटर काम है क्या? नहीं। तो अब हम आते हैं एक और चीज पे जिसको बोलते हैं एलिवेटर कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, क्या बोलेंगे, एलिवेटर, एलिवेटर कंट्रोल सिस्टम। ये क्या करेगा, मूव करेगा एलिवेटर को, ये मेन है। ठीक है, दूसरा करेगा डिस्पैच एलिवेटर। व्हाट डू यू मीन बाय डिस्पैच एलिवेटर? ये असाइनमेंट एल्गोरिदम चलाएगा कि कैसे एलिवेटर काम करेंगे। इसमें ही पूरा वो रहेगा कि भाई कौन सा एलिवेटर किस समय जाना चाहिए, कितने पास में है, ऐसा। फिर अपडेट करेगा डिस्प्ले को। ठीक है, इस पे हम क्या करेंगे, इसमें हमको एक तरीके से हम एक मिली सेकंड का डिस्प्ले रखेंगे फॉर स्टेट चेंज। व्हाट डू यू मीन बाय मिली सेकंड का डिस्प्ले? जब भी आपका इन कार या फ्लोट डिस्प्ले होगा, जो उसको रिफ्रेश करना पड़ेगा, कौन सा करेंट फ्लो नंबर है, क्या ट्रैवल ट्रैवल डायरेक्शंस हैं, ये सब चीज के लिए तो उसकी बात कर रहा हूँ मैं। एलिवेटर सिस्टम will operate the doors and it will detect the overload, and it will, what it will do, it will notify the operator। ठीक है, ये हो गया। और अब हमने फिर ऑपरेटर की बात कर ही दी है, अब रिलेशनशिप के बारे में बात करते हैं। तो रिलेशनशिप के बारे में हम जो बात करते हैं वो आता है कि पहली बात की एसोसिएशन की, ये एक लूजली वो रहता है। जैसे हमने बात किया कि लूजली क्या एसोसिएशन रहता है, तो इसमें क्या होगा कि पैसेंजर जो है, जैसे एलिवेटर सिस्टम में जो पैसेंजर रहेगा वो एसोसिएट करा जाएगा कॉल एलिवेटर से, है ना, कॉल एलिवेटर से। फिर वो क्या करेगा, सिलेक्ट करेगा डेस्टिनेशन फ्लोर, रिक्वेस्ट करेगा क्या, डोर ओपन क्लोज, एंड ट्रिगर करेगा इमरजेंसी स्टॉप। ठीक है, अब ऑपरेटर क्या करेगा, ऑपरेटर विल एंटर मेंटेनेंस मोड, एग्जिट। नाउ मेन चीज एलिवेटर क्यों करेगा, वो सारा ऑल ऑटोमेशन, राइट। ओके, नाउ वी विल try to understand what we will include and what we will exclude। सो पहले मैं आपको इसमें दिखाता हूँ, देन मैं आपको डायग्राम में दिखाऊंगा, तो दोनों चीजें अपने को समझ में आ जाएगी। तो पहला इंक्लूड क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, इंक्लूड मतलब कि एक यूज केस जो दूसरे यूज केस का बिहेवियर रखता है, जिसके मतलब कि वो यूज केस मैंडेटरी है, वो रीयूजेबल है, और टिपिकली उससे हम रिपीटेशन अवॉइड करते हैं। जैसे कि एक एलिवेटर सिस्टम में जब भी पैसेंजर एक डेस्टिनेशन को सिलेक्ट करेगा, ठीक है, तो क्या होगा कि वो सिस्टम जो है वो मूव करेगा और वो जाके उस एलिवेटर, जो एलिवेटर है वो उस फ्लोर पे जाके स्टॉप होगा जहां पे पैसेंजर ने बोला है कि आओ। ठीक है, और वहां पे वो आपका डिस्प्ले को अपडेट करता रहेगा। ये जो मूव स्टॉप एलिवेटर का जो चीज है वो सिलेक्ट डेस्टिनेशन फ्लोर पे इंक्लूड होना चाहिए।
और मूव स्टॉप एलिवेटर का जो सीन है वो अपडेट फ्लो डिस्प्ले में भी होना चाहिए, राइट, इनसाइड और आउटसाइड बोथ। तो दैट मीन्स जो हमारा पैसेंजर का मूव स्टॉप रिक्वेस्ट है, that will be tied up to what? That will be tied up to select destination floor and अपडेट डिस्प्ले। अब अपडेट डिस्प्ले ऊपर नीचे दोनों होगा, मतलब बाहर में भी होगा फ्लोर्स पे कि वो एलिवेटर कहाँ मूव कर रहा है, और सिमिलरली इस पे भी होगा। नाउ एग्जांपल टू पे हम चलते हैं कि सिस्टम जो है वो डोर ऑपरेशन परफॉर्म करता है, लाइक, राइट। तो जब पैसेंजर रिक्वेस्ट कर रहा है डोर ओपन डोर क्लोज, तो जैसे डेस्टिनेशन फ्लोर जो है, पहला डेस्टिनेशन फ्लोर के बारे में नहीं बात करेंगे, ये जो ओपन डोर क्लोज है ये क्या करेगा, ये ऑपरेट डोर्स पे इंक्लूड करेगा, है ना, ऑपरेट डोर्स इंक्लूड करेगा। सिमिलरली अगर आप डेस्टिनेशन सिलेक्ट करोगे तो ये भी आपका मूव स्टॉप एलिवेटर करेगा। डेस्टिनेशन सिलेक्ट करोगे अंदर जाके। चौथा क्या है आपका, कि जब भी आप एलिवेटर कॉल करोगे तो वहां पे भी क्या होगा, डिस्पैच एलिवेटर कॉल होगा, और वहां पे उस एलिवेटर का वो भी कॉल होगा कि भाई कैसे करना है क्या करना है। बट ठीक है, अब आते हैं हम एक्सक्लूड में। एक्सक्लूड मतलब कि ऐसा रिलेशनशिप जो कि काफी ज्यादा यूज केस है लेकिन वो ऑप्शनल है और कंडीशनल है, यानी कि एक एक्स्ट्रा स्टेप्स ऐड करता है और बिहेवियर ऐड करता है किसी और यूज केस में, लेकिन ये हमेशा इन्वोक नहीं किया जाता। जैसे कि अगर कार नॉर्मली ऑपरेट कर रही है और पैसेंजर ने इमरजेंसी बटन दबाया है, तो फ्लो जो है वो कार को हॉल्ट करेगा, तो इमरजेंसी ट्रिगर करेगा इमरजेंसी स्टॉप, है ना, ये करेगा एक्सटेंड नॉर्मल ऑपरेशन को। अब दूसरा, अगर ओवरलोड हुआ, है ना, डिटेक्ट ओवरलोड साइंग अलार्म, ये करेगा एक्सटेंड किसको, मूव को, मूव स्टॉप एलिवेटर को। करेक्ट, ये हो गया। नाउ हम आते हैं यूज केस डायग्राम पे, जो मैंने बताया, जो पहले हमने जो बात की थी कि कितने एक्टर्स हैं, एक्टर्स तीन है। पैसेंजर बोलेगा भाई एलिवेटर आओ, सिलेक्टर डेस्टिनेशन फ्लोर बताओ, क्लोर डोर को ओपन या क्लोज करना है कि नहीं, इमरजेंसी स्टॉप दबाना है कि नहीं। ऑपरेटर की बात करते हैं, ये एक तरीके से हमारा जो हमने क्या देखा था, हमने अभी पार्किंग स्लॉट देखा था डिजाइन सिस्टम, उसमें जो एडमिन था उसका काम है कि भाई कुछ बंद हो गया खराब हो गया तब की बात। अब एलिवेटर कंट्रोल सिस्टम की बात करते हैं, मूव ये मेन काम है, ठीक है, इसका मेन है चीज, ये डिस्पैच करेगा, ये मूव करेगा, ये अपडेट करेगा डिस्प्ले, ये डोर भी ऑपरेट करेगा। मैं यहां से बोलूंगा तो वो यहाँ पे ऑपरेट करेगा डोर को, मैं यहां से बोलूंगा तो ये ऑपरेट करेंगे, कॉल करूंगा तो ये ऑपरेट करेगा, ऐसे, ठीक है। अब आते हैं क्लास डायग्राम पे। तो देखो हमने जो बात की थी इंक्लूड एक्सक्लूड की, थोड़ा मैं इसको वो कर देता हूँ, और थोड़ा करना पड़ेगा, और थोड़ा करना पड़ेगा। तो यहां पे देखो एलिवेटर कंट्रोल सिस्टम पे पैसेंजर कैन कॉल, व्हेन पैसेंजर कॉल्स इट विल कॉल अ डिस्पैच एलिवेटर एज वेल इट विल कॉल अ रिक्वेस्ट ओपन टू क्लोज डोर। व्हेन वी विल कॉल रिक्वेस्ट ओपन टू क्लोज डोर, वी विल हैव आल्सो हैव अ ऑपरेट डोर्स क्या मेथड। सिमिलरली जब डेस्टिनेशन फ्लोर सिलेक्ट करेंगे तो वो मूव और स्टॉप करेगा एलिवेटर को, और वो डिटेक्ट ओवरलोड साइन भी एक्सटेंड कर सकता है। सिमिलरली पैसेंजर जब ट्रिगर करेगा कि इमरजेंसी स्टॉप है, तो नोटिफाई करेगा ऑपरेटर को, और ऑपरेटर फिर उसको क्या बोलेगा कि भाई एक्नॉलेज, और एक्नॉलेज करेगा, रिसीव करेगा, डिस्प्ले को करेगा, उसका मेंटेनेंस स्टेट की बात है, तो ये ऑपरेटर का है। नॉर्मली ये जो है डिटेक्ट ओवरलोड साइन के बाद भी ऑपरेटर को कॉल करना चाहिए, यहाँ नहीं, डिटेक्ट ओवरलोड साइन पे यहाँ पे वो क्लोज नहीं होगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट इज, let's just go with it one again. Passenger will call elevator. The call elevator has two functions. First it will call the dispatch elevator things, and then it will open and close once the elevator is in the floor. ओपन एंड डोर पे ऑपरेट डोर कॉल होगा, डेस्टिनेशन फ्लोर के अंदर पे मूव एंड स्टॉप एलिवेटर कॉल होगा। जब पैसेंजर ट्रिगर इमरजेंसी स्टॉप किया तो ये ऑपरेटर को नोटिफाई करेगा, ऑपरेटर नोटिफाई करने के बाद ऑपरेटर को एक्नॉलेज करना पड़ेगा और अपडेट करना पड़ेगा।
ठीक है, तो ये हमारा पैसेंजर वाला काम भी खत्म हो गया। नाउ वी विल कम टू अ न्यू थिंग which is a very old thing, class diagram। ठीक है, अगेन द सेम थिंग हियर कि आई विल शो यू all the diagram, but first I will tell you how and why it is, okay? So let us go with, तो देखिए क्लास डायग्राम ऐसा है, बट इतना कंफ्यूज मत हो क्योंकि बहुत सारे चीजें हैं यहाँ पे और आपको लगेगा अरे क्या बात चल रही है ये। तो चलो हम अपने से बनाते हैं। पहले हम बात करेंगे क्लास डायग्राम की। तो कंपोनेंट्स क्या क्या होंगे एलिवेटर सिस्टम के, हमने जैसे पहले बात की थी कि हम स्मॉल कंपोनेंट से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जैसे कि बटन, डोर, फ्लोर, राइट। तो उसके बाद हम मूव करेंगे एलिवेटर, कार, बिल्डिंग, ये सब चीज में। तो पहले बटन की बात करते हैं। तो बटन क्या रहेगा? बटन एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास रहेगा। क्यों, बताता हूँ बाद में। क्योंकि हमारे पास चार टाइप के बटन हैं: डोर का बटन, एलिवेटर का बटन, हॉल का बटन और इमरजेंसी स्टॉप का बटन, राइट। तो इसलिए हमारे पास बटन जो रहेगा वो एक तरीके से, बिकॉज वी विल हैव फोर डिफरेंट बटन: डोर, हॉल, एलिवेटर, इमरजेंसी। नाउ ये जो एलिवेटर बटन है या डोर बटन है या हॉल बटन है, सब कुछ क्या करेंगे, सब कुछ बटन से आएंगे। अब बटन के पास क्या रहेगा? बटन के पास खुद का पहला जो मेथड रहेगा या वैल्यू रहेगी वो रहेगी इज प्रेस्ड, राइट। हर बटन ने प्रेस हुआ है कि नहीं हुआ है वो वैल्यू रहेगी। उसके बाद चार डिफरेंट मेथड रहेंगे, तीन डिफरेंट मेथड रहेंगे: प्रेस, सब, लाइक डाउन, ओके, और इज प्रेस्ड और रीसेट। तो बेसिकली प्रेस डाउन है ये, मतलब क्या उस बटन जो है उसको प्रेस किया गया है, ठीक है, मतलब दबाया गया है वो। तो नाउ विल कम टू डोर बटन। डोर बटन का बहुत सिंपल है कि क्या ये प्रेस हुआ है, बस यही रहेगा इसमें, और कुछ नहीं रहेगा। ठीक है, अब एलिवेटर बटन क्या रहेगा? एलिवेटर बटन में एक रहेगा कि डेस्टिनेशन फ्लोर क्या थी भाई आपकी, इसको आप प्लेस करना चाहते हो, ये एक वेरिएबल रहेगा जो कि इंट मान लो। और फिर गेट डेस्टिनेशन फ्लोर रहेगा, ठीक है, और फिर इस प्रेस रहेगा। सिमिलरली आपका हॉल बटन में, जो हॉल बटन रहते हैं, जो हॉल से आप प्रेस कर रहे हो वो डायरेक्शन क्या है आपने प्रेस की है, डायरेक्शन रहेगी वो, अप डाउन जो भी इनम रहेगा आपका। और गेट डायरेक्शन रहेगा, ठीक है, क्या डायरेक्शन पे जाएंगे आप। और इज प्रेस्ड हमेशा, मतलब प्रेस नहीं हुआ है तो वो एक्चुअली ये बुलियन वैल्यू है ना, तो वो बताएगा कि भाई क्या है कैसा है। और फिर बुलियन वैल्यू नहीं, फंक्शन है बाय द वे, ठीक है। अब आएगा इमरजेंसी। इमरजेंसी में भी ऑलमोस्ट लाइक डोर बटन की, भाई क्या ये प्रेस हुआ है। नाउ वी विल कम टू पैनल्स। तो पैनल पे हमारे पास है एलिवेटर पैनल। ये क्या है? ये क्लास है जो ये बताता है कि एलिवेटर के अंदर कितने बटन्स हैं, ठीक है। और वैसे ही एक हॉल पैनल होगा। तो एलिवेटर पैनल की पहले बात करें, उसके अंदर क्या बताएंगे, हम बताएंगे कि भाई फ्लोर बटन्स कितने हैं, ये एलिवेटर बटन का लिस्ट होगा, ठीक है। फिर क्या बताएंगे, हम बताएंगे ओपन बटन, ये डोर बट एलिवेटर बटन का ये भी होगा। फिर हम बात करेंगे क्लोज बटन। फिर हम करेंगे इमरजेंसी बटन। तो ये सब जो है वो एलिवेटर बटन, एलिवेटर पैनल के अंदर होंगे। और इसमें फिर होगा एंटर, एंटर इमरजेंसी और एग्जिट इमरजेंसी, ठीक है। अब हम आते हैं हॉल पैनल पे। हॉल पैनल पे आपको पता है अप बटन होगा, डाउन बटन होगा जो कि हॉल बटन का एक्सटेंशन होगा, और गेट अप बटन, और गेट अप, बटन, और गेट अप 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 बटन, और गेट अप
ठीक है, और गेट डाउन बटन। ये बताऊंगा मैं क्या है, बट एक तरीके से ये मान लो। नाउ वी विल कम टू अप एंड डाउन की हम बात कर रहे हैं, ओके। हमको 2 फ्लोर 3 फ्लोर चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली जब आपको क्रिएट करना पड़ेगा, तो आप कैसे क्रिएट करोगे? तो क्रिएट ये होगा कि कितने नंबर ऑफ बटन चाहिए, तो बटन ये चाहिए जितने भी आपके फ्लोर हैं, +3। +3 क्यों? अप डाउन और एलिवेटर। अब हम आते हैं डिस्प्ले में। अब देखो, हर एलिवेटर में डिस्प्ले होगा अंदर और बाहर, राइट। और डिस्प्ले क्या बताएगा? डिस्प्ले बताएगा कि कौन से फ्लोर पे हो आप, कौन से, क्या आपका लोड है, क्या आपकी डायरेक्शन है, क्या आपका स्टेट है, क्या आप मेंटेनेंस में हो, क्या आप ओवरलोडेड स्टेटस में हो। और उसके बाद वो एलिवेटर का डिस्प्ले शो करेगा और अपडेट करेगा। तो ये बताएगा फ्लोर, ये बताएगा लोड, ठीक है, ये बताएगा डायरेक्शन, ये बताएगा स्टेट, ये बताएगा मेंटेनेंस, ये भी बुलियन है, और ये बताएगा ओवरलोड। अब बात करते हैं थोड़ी सी स्मार्टनेस की, कि फ्लोर क्या रहेगा? फ्लोर इंट रहेगा। लोड क्या रहेगा? लोड कैन बी इंट और डबल, बट चलो इंट लेते हैं। डायरेक्शन कैन बी इनम, एंड स्टेट कैन बी इनम, मेंटेनेंस कैन बी बुलियन, इज बुलियन एंड इज ऑल्सो बुलियन। नाउ टॉक अबाउट मेथड। शो एलिवेटर डिस्प्ले देन अपडेट। नाउ कमिंग टू डोर। डोर का बहुत सिंपल सा फंडा है कि क्या डोर ओपन है तो क्लोज करो, ठीक है। और स्टेट लेके आओ, डोर का कहाँ पहुंचा, नहीं क्या ओपन है क्लोज है। अब स्टेट, क्योंकि अगर ओपन है तो आप उसमें कुछ कुछ ऑपरेशन कर सकते हो, राइट, अंदर पे जाके कि भाई ये करना है। नाउ गेट स्टेट में डोर की स्टेटस क्या है, अभी वो करना है, करने के लिए। तो अब क्लोज का क्या है? डोर क्लोज मतलब कि डोर क्लोज करने का थिंग। अब इज ओपन नहीं है, ठीक है, तो आप जाके डोर का स्टेट को ओपन कर सकते हो वैसा, या डोर डॉट ओपन भी लिख सकते हो, बट बताऊंगा मैं आपको बाद में। अब एलिवेटर कार की बारे में बात करते हैं। क्या करेगा एलिवेटर कार? एलिवेटर कार के पास क्या क्या चीज है? एलिवेटर कार जो है वो एक्सप्रेस करेगा जितने भी एलिवेटर हैं बिल्डिंग पे उसके। तो अब अगर हम बहुत सारे एलिवेटर्स के बारे में बात करते हैं, तो क्या होना चाहिए? आपके पास उसकी आईडी होनी चाहिए। तो आईडी रहेगी, करंट फ्लोर रहेगा, उसका स्टेट रहेगा, डोर रहेगा, डिस्प्ले रहेगी एलिवेटर कार में, पैनल रहेगी एलिवेटर कार में, रिक्वेस्ट क्यू रहेगी एलिवेटर कार में, लोड रहेगा एलिवेटर कार में, ओवरलोड स्टेट भी रहेगा और मेंटेनेंस स्टेट भी रहेगा। अब इसी में हम आते हैं फंक्शंस पे। तो एलिवेटर कार की आईडी दो हमको, एलिवेटर कार का करंट फ्लोर दो हमको, फंक्शन नहीं बोलो पर ठीक है, एनकैप्सुलेशन मान लो, स्टेट दो हमको, पैनल दो हमको, क्या ये मेंटेनेंस में है? ये सब आपके अनकैप्सुलेटेड फंक्शन है, समझ में? ओवरलोडेड और मूव, स्टॉप, एंटर मेंटेनेंस, एग्जिट मेंटेनेंस, ठीक है। और क्या आएगा? सोचो। इमरजेंसी, और क्या हम उस पर लोड ऐड कर सकते हैं? हाँ, जैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोड होगा, गेट डिस्प्ले और गेट डोर। नाउ ये सब क्यों हुआ है? क्योंकि आपके सारे रिक्वायरमेंट्स ऐसी थे, ठीक है। अब आते हैं हम फ्लोर पे। फ्लोर पे जब आएंगे तो फ्लोर पे तो ऑब्वियसली आपका जो रहेगा वो फ्लोर नंबर रहेगा, पैनल रहेगा, डिस्प्ले रहेगा, और फिर आपके सेम चीज गेट में सारे रहेंगे। नाउ बिल्डिंग, क्योंकि हम उसको बोल रहे हैं भाई हर बिल्डिंग के हिसाब से होना चाहिए, बिल्डिंग में कितने, बिल्डिंग में फ्लोर कितने हैं और एलिवेटर कार्स कितने हैं, ठीक है। अब मेन आता है एलिवेटर सिस्टम। ये एक मेन फंक्शनल क्लास है जो सब कुछ बताएगा। तो सिस्टम
रहेगा और बिल्डिंग उसके अंदर रहेगा। बिल्ड सिस्टम मतलब एलिवेटर सिस्टम ही है। और इसके अंदर क्या रहेगा, कितने कार्स हैं, एलिवेटर कॉल करने का मेन मेथड ये रहेगा, डिस्पैचर रहेगा इस पे, और मॉनिटरिंग रहेगी, और गेट नियरेस्ट आइडल कार रहेगा। ठीक है। अब हम आते हैं इनम्स में। इनम्स हमको पता है कि हम एलिवेटर स्टेट का इनम रखेंगे और डायरेक्शन का इनम रखेंगे और डो स्टेट का इनम रखेंगे। अब आते हैं हम एग्रीगेशन, कंपोजिशन और इनहेरिटेंस पे। तो एग्रीगेशन कैसे रहेगी, हमको पता है कि एग्रीगेशन मतलब कि एक हैज अ रिलेशनशिप होता है जहां पे जो कंटेनर रहता है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है कंटेंट पार्ट के हिसाब से, और जो पार्ट जो है कंटेंट पार्ट जो है वो भी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है और कई बार शेयर किया जाता है। तो जैसे कि एलिवेटर सिस्टम जो है, क्या एलिवेटर सिस्टम बिल्डिंग के अलावा भी एग्जिस्ट कर सकता है? तो एलिवेटर सिस्टम में एक हाई कंट्रोलर है, ठीक है, जिसमें बिल्डिंग का इंस्टेंस है और बिल्डिंग में कितने एलिवेटर कार्स हैं वो सब के लिए इंस्टेंस है, तो वो एग्जिस्ट कर रहा है। सिमिलरली जो बिल्डिंग है वो किससे एग्रीगेट करता है, बिल्डिंग के अंदर क्या होगा, बिल्डिंग के अंदर होगा फ्लोर और एलिवेटर कार। ठीक है। तो इस तरीके से हम बात करेंगे। नाउ बात करते हैं कॉम्पोजिशन की। तो कॉम्पोजिशन इज अ पार्ट ऑफ रिलेशनशिप, मतलब कि वो है तो है, नहीं है तो नहीं है। ठीक है। जैसे कि हम बात करें अगर एलिवेटर कार की, तो ये डोर, डिस्प्ले और एलिवेटर पैनल से बना है। तो इसका मतलब क्या है कि उसका खुद का डिस्प्ले होगा, खुद का ये होगा और खुद का पैनल होगा। ठीक है। और फिर जो डोर, डिस्प्ले और पैनल है, अकेले से कोई मतलब नहीं है उनका। सिमिलरली फ्लोर, फ्लोर क्या होगा, फ्लोर के अंदर ही हॉल पैनल होगा और डिस्प्ले होगा। उसके बाद हम आते हैं हॉल पैनल में। हॉल पैनल के अंदर ही हॉल बटन होंगे। सिमिलरली एलिवेटर पैनल पे आते हैं। एलिवेटर, एक तो नया स्पेलिंग इतनी मिस्टेक होती है, सॉरी फॉर दैट। एलिवेटर पैनल पे आते हैं, उसमें भी आपके खुद के एलिवेटर बटन, एलिवेटर बटन लिखा हुआ है यहाँ पे, डोर बटन एंड इमरजेंसी बटन होंगे। तो देखो, aggregation is like two classes combining, like one class is having another class and that another class can co can exist। ठीक है, उसकी बारे में बात हो रही है। नाउ आते हैं इनहेरिटेंस में। तो हम सब देख लें कि इस बार तो एक ही है। ये क्या लिखा हूं मैं, इंटरगिटेक्ट, क्या है ये, इनहेरिटेंस। तो इस बार तो एक ही, पिछले बार हमारे पास व्हीकल का था, पेमेंट का था, और किसका था यार, पार्किंग स्पॉट के इनहेरिटेंस थे। इस बार हमारे पास सिर्फ और सिर्फ बटन के इनहेरिटेंस है। बटन जो है वो डोर बटन, हॉल बटन, इमरजेंसी बटन और एलिवेटर बटन में काम खत्म हो जाएगा। अब आते हैं मेजर पंगों में। लेकिन उसके पहले मैं बात करता हूं कि भाई रिलेशनशिप कैसे होगी। ठीक है, बटन का मान लेते हैं इनहेरिटेंस। अब बात करता हूं कि रिलेशनशिप कैसी होगी। तो एलिवेटर का जो सिस्टम है, उसका सिस्टम जो बात करेंगे अपन बिल्डिंग से होगा। तो ये वन ऑन वन रहेगी। हर एलिवेटर सिस्टम जो है वो एक बिल्डिंग को मैनेज करेगा। अब बिल्डिंग और फ्लोर का, कि हर बिल्डिंग में, बिल्डिंग और फ्लोर का बात करेंगे तो हर बिल्डिंग में एक बिल्डिंग होनी चाहिए, है ना। और उसमें 1 से 15 लिखा है पर 1 से X फ्लोर हो सकते हैं। फिर बिल्डिंग और एलिवेटर कार, एक बिल्डिंग में 1 से X हो सकते हैं, ये एक बिल्डिंग और ये 1 से X। सिमिलरली फ्लोर और एलिवेटर कार में क्या होगा, हर फ्लोर पे, एक फ्लोर पे 1 से
एक्स कार हो सकते हैं। ठीक है। फिर आपका आता है फ्लोर और हॉल पैनल पे, सेम चीज, एक से कितने भी हॉल पैनल या एक्स पैनल हो सकते हैं। फिर आता है फ्लोर और डिस्प्ले प्ले, सिमिलरली जितने हैं उतने होंगे। तो यहाँ पे एक फ्लोर पे हॉल पैनल और हॉल बटन, हर पैनल पे हर बटन होगा, दो बटन हो गया अप डाउन। फिर एलिवेटर कार और एलिवेटर पैनल, हर एलिवेटर कार पे एक एलिवेटर पैनल होगा। फिर एलिवेटर कार और डोर 1:1। ठीक है। फिर एलिवेटर कार और डिस्प्ले 1:1। ठीक है। फिर एलिवेटर पैनल और एलिवेटर बटन। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक एलिवेटर पैनल पे 1 से लेके नंबर ऑफ फ्लोर्स +3। ठीक है। अब एलिवेटर पैनल और डोर बटन, तो उसमें होगा 1 से 2। अब एलिवेटर पैनल से लेके इमरजेंसी बटन, ऑब्वियसली 1:1। ठीक है। अब ये हमारा हो गया। अब आते हैं बड़े चीज में। तो देखो, हॉल बटन के बारे में बात करेंगे। उसमें डायरेक्शन रहेगी और क्या रहेगा, गेट डायरेक्शन इज प्रेस। एलिवेटर फ्लोर के बारे में बात कर दी हमने। ये हमारे सब चीज जाके बटन को कर रहे हैं, ये हमारा हो गया इनहेरिटेंस। अब मेन आते हैं इनम्स पे। इनम्स हमारे पास एलिवेटर स्टेट के हैं, आइडल, अप डाउन मेंटेनेंस, डायरेक्शन अप डाउन आइडल, दो स्टेट ओपन एंड क्लोज। फिर आते हैं हम बिल्डिंग पे। तो जो बिल्डिंग के अंदर क्या होंगे, बिल्डिंग के अंदर होंगे फ्लोर्स और एलिवेटर कार्स। ठीक है। तो एलिवेटर कार जो है उसको एलिवेटर सिस्टम संभालेगा, एलिवेटर सिस्टम के अंदर बिल्डिंग होगी। एलिवेटर सिस्टम में क्या संभालेगा, सिस्टम होगा, बिल्डिंग होगा। ठीक है। उसमें क्या, कितने कार्स हैं, एलिवेटर कॉल करो, डिस्पैच करो, मॉनिटर करो और नियरेस्ट आइडल कार फंक्शन लो। उसके बाद फ्लोर पे, फ्लोर नंबर क्या है, पैनल क्या है और डिस्प्ले क्या है, और सेम चीज। नाउ हॉल बटन, हॉल पैनल के अंदर हॉल बटन होगा और फ्लोर के अंदर हॉल पैनल होगा, फ्लोर के अंदर डिस्प्ले होगा। एलिवेटर कार के अंदर जो है वो डिस्प्ले होगा और एलिवेटर पैनल होगा, डोर होगा और बिल्डिंग भी हो सकती है। ठीक है। नहीं भी होगी बिल्डिंग चलेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि एलिवेटर कार का सिस्टम है वो बिल्डिंग जो है उसके अंदर एलिवेटर कार होनी चाहिए, एलिवेटर कार के अंदर बिल्डिंग नहीं होनी चाहिए। ठीक है। तो ये हमारा काम हो गया। अब हम आते हैं, एक काम करता हूँ, पॉज कर लेता हूँ, थोड़ी देर देख लो। बट पॉज तुम भी कर सकते हो, चलो भाई वापस आओ, वापस आओ। नाउ डिजाइन पैटर्न की बात करते हैं। तो जैसे हमने बात की स्ट्रेटजी पैटर्न की, ये कब काम आएगा, ये काम आएगा डिस्पैचिंग लॉजिक पे। यानी कि सिस्टम असाइन करेगा एलिवेटर कार को रिक्वेस्ट के, डिपेंडिंग ऑन बिल्डिंग साइज, ट्रैफिक पैटर्न, कस्टम पॉलिसीज। स्ट्रेटेजिक जो स्ट्रेटजी पैटर्न से आप ये कर सकते हो कि आप बहुत सारे डिस्पैच एल्गोरिदम लगा सकते हो, ये स्ट्रेटजी अपनानी की, ये स्ट्रेटजी अपनानी की, ये स्ट्रेटजी अपनानी, लाइक आप कर सकते हो नियरेस्ट कार कौन सी है, लीस्ट बिजी कौन सी है, और टाइम बेस्ड शेड्यूलिंग कर सकते हो। ठीक है। अब फिर आते हैं स्टेट, सॉरी जहां पर लिखता हूँ स्ट्रेटजी पैटर्न यूज्ड फॉर डिस्पैचर। ठीक है। अब स्टेट पैटर्न ये आपको ये बताता है कि आप ट्रांजिशन कैसे करते हो, आइडल स्टेट, मूविंग स्टेट, ये सब में। तो इससे आप डेलीगेट कर सकते हो कि जो भी आपका ऑब्जेक्ट है उसको, कि उस पर्टिकुलर स्टेट पे क्या हो रहा है, जिससे डोर, लाइक वो फिर वो पर्टिकुलरली परफॉर्म कर सकता है। जैसे डोर लॉजिक हुआ, इनपुट हैंडलिंग हुआ, ये हुआ। अब आते हैं, अब आते हैं हम डेलीगेशन पे। तो मतलब कि इंस्टेड ऑफ implementing all the behavior in the same class, we will delegate, enable, like enable सब, like elevator system और elevator cars को कुछ responsibilities दी जा रही है, जैसे कि dispatching, state management, display updates, और ताकि
सब कुछ अलग अलग से मैनेज हो पाए और सब कुछ कॉम्प्लिकेट ना दिखे। अब आते हैं, कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट भी हम डाल सकते हैं, जैसे कि टू मिनिमाइज द वेट टाइम ऑफ अ सिस्टम, टू मिनिमाइज द वेट टाइम ऑफ द पैसेंजर, टू मैक्सिमाइज थ्रूपुट, और टू मिनिमाइज फर्स्ट लाइक पावर यूसेज एंड कॉस्ट। तो हम फर्स्ट कम्स फर्स्ट सर्व डाल देंगे कि अगर एलिवेटर आइडल स्टेट में है और एलिवेटर अगर पैसेंजर की तरफ मूव कर रहा है और उसी डायरेक्शन में कोई और पैसेंजर आ गया, बट वो अगर अपोजिट तरफ जाना चाहता है, तो इसमें जो पैसेंजर ने पहले कॉल किया उसकी तरफ जाएगा। अब आते हैं शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट। इसका मतलब ये है कि FCFS, अब शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट, इसमें क्या है कि पैसेंजर जो है, जो क्लोजेस्ट है कार के, उसको मिलेगा, क्योंकि वही सबसे बेटर है। ये जो कंसीडरिंग करते हैं इसमें ज्यादा मैनेजमेंट कम होता है, मतलब FCFS से जैसे मूवमेंट कम होती है और इससे हमारा थ्रूपुट भी इंक्रीज होता है। बट इसमें एक लूप होल है कि जो मिनिमम डिस्टेंस पैसेंजर्स हैं उनको हमेशा एक्सेस मिलेगा। कोई टॉप फ्लोर पे है उसको तो मिलेगा ही नहीं। तो हम इसके लिए प्रायोरिटी की क्यू या मिन ही यूज कर सकते हैं। नाउ आता है स्कैन। इसको एक्चुअल में बोलते हैं एलिवेटर एल्गोरिथम। ये करता क्या है? पहले ये एलिवेटर कार जो है वो एक एंड ऑफ द बिल्डिंग से मूव करके अनदर एंड ऑफ द बिल्डिंग में जाती है, वन एंड टू अनदर एंड, और उसके बीच में रिक्वेस्ट करती है। तो इससे क्या होता है कि जो भी मेथड है, एडवांटेज है कि मल्टीपल रिक्वेस्ट पैरेलल में हो सकती हैं। दूसरा, ये थोड़ा सा कॉस्ट इंक्रीज करता है क्योंकि वो एक ही डायरेक्शन में चार्ज करती है। बट हम दो बुल और पर इसको यूज दो बुलियन एरे यूज कर सकते हैं और एक सिंगल हैश मैप यूज कर सकते हैं। हैश मैप यूज कर सकते हैं या तो दो प्रायोरिटी क्यू। ठीक है। फिर आता है लुक। लुक भी एक तरीके से लुक अहेड स्कैन एल्गोरिदम है। क्या है? लुक अहेड स्कैन एल्गोरिदम। क्या है यार ये सब? यप। सो इस एल्गोरिदम में एलिवेटर कार जो है वो स्टॉप रहती है व्हेन देयर इज नो रिक्वेस्ट। फिर क्या करेगा? इट विल ओनली मूव ऑन रिक्वेस्ट। इससे हमेशा वो ऊपर नहीं जाएगा, अगर कोई रिक्वेस्ट नहीं है तो ऊपर नहीं जाएगा वो। ठीक है। ये कैसे और इम्प्लीमेंट कैसे की जाएगी? हैश मैप, ट्री मैप और बाइनरी सर्च ट्री से। ओके। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है क्या? नेक्स्ट है एक तरीके से सीक्वेंस डायग्राम। ठीक है। तो ये हम करेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो पे, बिकॉज अभी हमने काफी कुछ पढ़ लिया है। तो नेक्स्ट पर्टिकुलर वीडियो पे सीक्वेंस एक्टिविटी और कोड ही की बात की जाएगी। ओके।